you can actually frame your interview. So like वो आपको first question पूछते हैं and you can आपके आंसर आप इस तरीके से आंसर कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आए. So never say no if you can't figure out the approach of to solve a question. उनसे आप इंटरेक्ट करिए, हिंट्स मांगिए, तो वो आप डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. उनको बस ये दिखना चाहिए कि द पर्सन इज विलिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. Hello everyone, welcome to IC2C's podcast series. Today we have Mr. Rishabh Singhvi with us. He has just completed his third year of BE in Information Science and Engineering from NIE Mysore, and he has received a placement from Ecolite Digital as a software engineer along with 6-month internship. So Rishabh, if I have missed something, can you tell us something more about yourself? Yeah, Shajal, thanks for introduction. You covered almost everything except I am currently working as a web dev lead at Google Developer Student Clubs NIE. Also, my hobbies are basketball and traveling. Yeah, that's great. Thank you. So guys, this is our another video in the series of placement. हमारी और videos already आ चुकी है Google और Microsoft पे, वो ऊपर आई बटन पे. And in this video we are going to discuss about experience of his shortlisting round, what was the experience of his interview round, his experience of HR round, and finally Rishabh will give some tips and tricks for you guys to rock the interviews. So moving forward, so Rishabh, can you tell us like what was the experience of your shortlisting rounds? Okay. Shortlisting round was based on MCQs, technical MCQs and some aptitudes. So 30 questions पूछे गए थे and we have to complete it in 30 minutes. MCQs were mostly based on DBMS, input-output operations, graph and time complexity related questions. काफ़ी बेसिक सवाल किए गए थे and you can easily answer. ऑल्सो इस राउंड को क्लियर करने के लिए 60 to 70% का एक्यूरेसी चाहिए होता है. सो आई स्कोर्ड 90%. आई वॉज शॉर्टलिस्टेड फॉर द फर्स्ट राउंड. देन कमिंग टू द सेकेंड राउंड. सेकेंड राउंड वॉज कोडिंग राउंड. एक कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, इजी मीडियम लेवल का बिल्कुल. कोडिंग क्वेश्चन गिग्स फॉर गिग्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन का नाम है काउंट मिनिमम स्टेप्स टू गेट डिजायर्ड अरे. सो काफी इजी मीडियम लेवल का क्वेश्चन था एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. तो एक ही क्वेश्चन था एंड सारे टेस्ट के पास होने चाहिए थे उसमें. तो सिलेक्शन दैट वाज द क्राइटेरिया फॉर गेटिंग सिलेक्टेड फॉर द सेकंड शॉर्टलिस्ट राउंड. Okay, so that was about your shortlisting rounds. There were 2 rounds. First round was of MCQs and second was of coding round. Yeah. Okay, so moving forward toward your interview round, can you tell us like how many interview rounds were there and what was your experience? Okay. So there were 3 interview rounds, 2 technical and 1 HR round. तो फर्स्ट राउंड की बात करते हैं. फर्स्ट राउंड मेरा पूरा कोडिंग बेस्ड हुआ था. सो ही आस्क्ड 5 कोडिंग क्वेश्चंस. और फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन तो सिंपल अरे बेस्ड था एंड ही लाइक मैंने कोड किया था एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन विच आई कोडेड द क्वेश्चन वाज लॉग एन. तो उसने मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करने को बोला था और O of n में सॉल्व करने को बोला. देन आई चेंज द कोड एंड सॉल्व इट इन O of n. सेकेंड बाकी के जो अपकमिंग तो 2 क्वेश्चंस थे वो लिंक लिस्ट पे बेस्ड थे. सो जनरल क्वेश्चन लाइक गिवन 2 लिंक लिस्ट, दे आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट, सो यू नीड टू रिटर्न द नोड वेयर दे आर इंटरसेक्टिंग. The another question on linked list was to delete a node in the linked list. तो हमको head reference नहीं दिया गया था linked list का, middle reference दिया हुआ है and you have to delete that node. So basic questions थे linked list के ऊपर. And then the next question was on binary tree. So I have to print the top view of a given binary tree. उन्होंने screen share कराया था and मुझे सिर्फ normal pseudo code लिखना था, ज़्यादा कुछ नहीं. And after that he asked me a question on recursion. The question was you are आपको एक नंबर दे रखा है जैसे 10 and you have to reduce it to 1 by performing some operation. The operation was you can either subtract -1 from it, either you can divide it by 2 or you can divide it by 3. तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन बताने थे जिससे आप किसी नंबर को 1 में कन्वर्ट कर सकते हो. सो आई स्टार्टेड. मैंने कोशिश की थी सॉल्व करने की बट मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था इस क्वेश्चन को, लाइक अप्रोच नहीं पकड़ पा रहा था. देन आई आस्क्ड फॉर हिंट
एंड उन्होंने मुझे रिकर्शन बोला एंड आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो इन द फर्स्ट राउंड मैंने पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे इवेंचुअली. Then I get shortlisted for the second technical interview round. जो सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू राउंड था वो पूरा थ्योरेटिकल राउंड था, और उसमें मुझे वो लोग काफ़ी ज़्यादा DBMS एंड ऊप्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं. DBMS में भी मैं बोलूँ तो नॉर्मलाइजेशन, SQL क्वेरीज एंड जॉइंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं वो लोग. ऊप्स तो उन्होंने मुझे ही दे आस्क्ड लाइक अबाउट एवरीथिंग अबाउट ऊप्स. सो ऊप्स तो मुझे कंप्लीट आना चाहिए एकदम, फ्रॉम लाइन टू लाइन आपको ऊप्स आना चाहिए. Then some question after that they started questioning me on my resume, my previous internship that I have mentioned in my resume. तो उन्होंने जो भी मैंने अपनी प्रीवियस इंटर्नशिप में टैग यूज की थी उस पे बेस्ड क्वेश्चंस थे, जावास्क्रिप्ट एंड Vue.js रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो कि मैंने अपने प्रीवियस इंटर्नशिप में किए थे. एंड सम क्वेश्चंस वर बेस्ड ऑन रेजर पे, क्योंकि मैंने अपनी एक इंटर्नशिप में रेजर पे इंटीग्रेशन किया था, तो मुझे रेजर पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे. That's it for the 2 technical rounds. Okay, so that was about your interview round. And guys, ऋषभ ने जितने भी क्वेश्चंस बोले उन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, so do check it out. And moving forward, ऋषभ, can you share the experience of your HR round? हाँ, HR राउंड काफ़ी अच्छा गया था मेरा. HR राउंड आपको HR आपको पूरा कंफर्टेबल कर देता है कि आप पूरा रिलैक्स हो जाओ. एंड देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन ऑन about myself, and then he asked why should we hire you, why do you want to join this company, what are your strengths and weaknesses, and after that she asked me to explain one of my projects. So basically HR राउंड में अगर आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने को बोल रहे तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल देखना चाहते हैं कि आप एज अ लेमैन को भी आप अपना प्रोजेक्ट समझा पा रहे कि नहीं. तो या दैट्स इट फॉर HR राउंड. और उसके बाद उन्होंने सैलरी स्ट्रक्चर्स एंड जॉब लोकेशंस के बारे में पूछे थे. और देन एट लास्ट शी आस्क्ड मी इफ आई हैड सम क्वेश्चंस फॉर हर. तो मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे, हमको लाइक ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछनी चाहिए कि हम ओवर एक्साइटेड शो हो रहे किसी कंपनी के लिए. तो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस लगने चाहिए कि आपकी कंपनी और आपकी टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए. So I asked the questions. One question was that technology is changing every 6 months. So जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपना बेस्ट ट्राई करते हैं कि हम टेक्नोलॉजी से एकदम अपडेट रहे, पर कई बार ऐसा होता है कि कंपनी को कुछ पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चाहिए होती है एंड दे आर फोकसिंग ऑन लाइक दिस अपकमिंग टेक्नोलॉजी. सो कंपनी को इस पर्टिकुलर चीज टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने के लिए एम्प्लॉय के लिए कितना फ्रीक्वेंट वर्कशॉप कराती है और कैसे कराती है. दिस वाज द क्वेश्चन आई आस्क्ड. एंड द अनदर क्वेश्चन वाज लाइक मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने का शौकीन हूँ, तो मतलब मुझे एक्सप्लोर करना काफ़ी पसंद है दूसरी टेक्नोलॉजीज. तो हम अपनी कंपनी में जो टैग यूज़ कर रहे हैं, जो हमारा वर्क प्रोफाइल है, उसके बियॉन्ड जाके हम दूसरी कितना कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं और कंपनी से हमको कितनी फ्रीडम मिलती है. That was the question I asked. These were the 2 questions. Great. So that's how you got selected for the company, and that was our experience of interview round. This was the plan. Great. Yeah. And finally, Rishabh, can you give some tips and tricks for your juniors to help them out for the interview, like what they should do and what they should do? Yeah, sure. सो आपको काफ़ी रिलैक्स होना चाहिए. इंटरव्यू बहुत इजीली पकड़ लेता है कि अगर आप रिलैक्स नहीं हो, ज़्यादा नर्वस हो, तो बी रिलैक्स. इंटरव्यू लाइक काफ़ी फ्रेंडली टॉक होनी चाहिए इंटरव्यूअर से. सो ऑल्सो यू कैन एक्चुअली फ्रेम योर इंटरव्यू. सो लाइक वो आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं एंड आपके आंसर आप इस तरीके से आंसर कीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आए. So like for example, they asked me on the tech I used and the work I done in my previous internship. तो मैंने अपना previous internship का आंसर में जो वर्क किया था एंड मैंने वही सब बोला लाइक रेजर पे इंटीग्रेशंस एंड ऑल. तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रेजर पे ही आया. तो लाइक यू कैन एक्चुअली फ्रेम योर इंटरव्यू. आपको जो आंसर मालूम होते हैं आप उस तरीके से आपका इंटरव्यू फ्रेम कर सकते हो. Also, the thing I learned in my first round, so never say no if you can't figure out the approach to solve a question. So like the last question he asked me
on recursion I was not able to figure out the approach, तो आप नहीं मत बोलिए कि that's it, I don't know the question. So वो उनको शो होना चाहिए कि how willing are you to solve a problem. तो ask for hints and interact with them. So उनसे आप इंटरेक्ट करिए, हिंट्स मांगिए, तो वो आप डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. उनको बस ये दिखना चाहिए कि द पर्सन इज विलिंग टू सॉल्व द क्वेश्चन rather than escaping from the question, so escaping from the problem. So also you can go and practice on lead code and GFG में you can go on practice company questions and you can find many companies you want to get selected. Yeah, great. That's So that was some tips and tricks for juniors. And thank you Yeah. guys. Thank you guys. अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हो तो do subscribe the channel and like the video. और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो. We will definitely reach out to you. And thank you Rishabh for being with us. We had a very great experience with you. Thank you.